محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں رکھو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال بیمار ہوا، یہاں تک کہ موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت سا مال ہے اور میرا وارث ایک بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، صدقہ مت کرو۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھا صدقہ کر دوں؟ فرمایا، آدھا بھی مت کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا 1/3 صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، 1/3 کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور لوگوں سے مستغنا چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ کمپلیکس کا آج ریاستی وزیراعلیٰ KCR نے کیا افتتاح۔ 15,000 سے زیادہ غربا کو حکومت کی جانب سے فراہم کیا جائے گا ڈبل بیڈ روم۔ تقریب میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے کی شرکت۔ تلنگانہ شہداء کی قربانیوں کے سبب ریاست تلنگانہ ترقی کی جانب گامزن۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی کا بانسواڑہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب۔ بودھن عصمت ریزی میں ملوث درندوں کا انکاؤنٹر کرنے کا مختلف تنظیموں و سیاسی جماعتوں کے ذمہ داروں نے بودھن کا دورہ کرتے ہوئے حکومت سے کیا مطالبہ۔ وہ بودھن MLA شکیل عامر کی جانب سے فوراً موقع پر پہنچتے ہوئے کی گئی کارروائی پر کی ستائش۔ تلنگانہ شہداء کی عزت و احترام کرنا ہماری تہذیب۔ تلنگانہ سرسوتی پریشد کی جانب سے منعقدہ تقریب سے متحدہ ضلع MLC کے کویتا کا خطاب۔ تلنگانہ شہداء کی قربانی ناقابل فراموش۔ ونائک نگر میں شہداء مجسمے کو MLA بیگالا گنیش گپتا و ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے پیش کی خراج۔ پورے ملک میں معذورین کو پینشن کی فراہمی میں تلنگانہ نمبر 1۔ نظام آباد کے 5,000 نابینا معذورین کو شناختی کارڈ کے اخراجات فراہم کرنے کا رورل رکن اسمبلی باجوٹی گوردھن نے کیا اعلان۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل جانب۔ نابالغ مسلم لڑکی کی عصمت ریزی حافظ محمد لئی خان کا بودھن دورہ۔ وہ خاطی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی و مظلوم کو سرکاری ملازمت فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء کی جانب سے یہاں بودھن ٹاؤن میں CI صاحب کے پاس کمپلین دی گئی مفتی شیخ جابر اشاقی صاحب کے نام سے، جو واقعہ شکر نگر میں واقع رونما ہوا ہے، انتہائی شرمناک واقعہ، جو کہ معصوم لڑکی کی عصمت ریزی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی تعلق سے آج یہاں پر آنا ہوا اور ان کے متاثرہ افراد خاندان سے ان کی والدہ جو بیمار ہے ان سے ملاقات ہوئی، اور آج یہاں پر آ کر جب ان کے گھر کو دیکھا تو انتہائی خستہ حالت ہے، اور وہ خود خاتون بیمار ہے اور بچی یتیم ہے اور انتہائی قابل رحم لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے انتہائی شرمناک، اور عصمت ریزی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اسی تعلق سے آج CI صاحب سے باضابطہ تحریراً درخواست دیے ہے، کمپلین کیے ہے کہ جتنوں کے اوپر ابھی جو FIR ہوا ہے اس کے اوپر اور ہیوی سیکشن یعنی سنگین دفعات لگانا چاہیے۔ CI صاحب نے ہم کو یہ تیقن دیا کہ
کہ دفعات میں مزید اضافہ بھی ہوگا اور ان کی جو ضمانت کی جو کارروائی ہوں گی اس میں بھی رکاوٹ کریں گے اور بیل آسانی سے جلدی نہیں ہونے دینے کا سی آئی صاحب نے ہم کو وعدہ کیا ہے. ہم پولیس کے بھی شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی سارے مسلمانوں کی جانب سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے ایکٹ میں اور حیدرآباد میں ایک پرینکا ریڈی کے ساتھ جو ہوا تھا اگر ممکن ہو سکے تو ایسا کوئی آرڈر نکال کے اس قسم کے لوگوں کا پولیس کو انکاؤنٹر کر دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ رونما. بودھن میں پیش آیا انسانیت سوز اور انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ. محکمہ پولیس معاملے کی بے باک جانچ کرے. جمیعت علماء ضلع جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقیوم شاکر انہوں نے بودھن ایم ایل اے شکیل عامر کی جانب سے لیے گئے فیصلے کا کیا خیر مقدم. وہ کی ستائش. کل شہر بودھن کے اندر شکر نگر میں جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے میں جمیعت علماء کے اسٹیج سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت تلنگانہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معصوم 13 سالہ لڑکی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس خاطی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سخت سے سخت سزا دلانا چاہیے اور دینا چاہیے. اور اس موقع پر میں داد دیتا ہوں جناب شکیل عامر صاحب رکن اسمبلی بودھن کی کہ جنہوں نے بروقت جائے واردات پر پہنچ کر ہمت دی, دلاسا دیا اور حکومت تلنگانہ سے انہوں نے بھی مطالبہ کیا اور اپنی پارٹی سے بھی انہوں نے مطالبہ کیا اس لیے کہ یہ حرکت کوئی معمولی حرکت نہیں ہے اور جس لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ اور واقعہ پیش آیا ہے ہم ان کے اس غم کے موقع پر ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل اور قانونی جو بھی چارہ جوئی ہوگی اس کے لیے ہم جمیعت علماء کے اسٹیج سے انشاءاللہ تیار رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمامی لوگوں کی خدمات کو قبول کرے اور خاص طور پر ملک کے اندر جو ایسے نئے نئے واقعات اور واردات پیش آ رہے ہیں اللہ اس بدعملی سے ہمارے ملک کی اور ملک کے تمام لوگوں کی حفاظت اور سلامتی عطا فرمائے. بودھن میں عصمت ریزی کے ملزمین کو انکاؤنٹر کرتے ہوئے ایک سبق دینے کا ایم بی ٹی ضلع صدر ظہیر الدین جاوید نے کیا مطالبہ. مظلوم کے افراد خاندان کو ہر طرح سے مدد فراہم کرنے کا کیا اعلان. جو بودھن شکر نگر میں جو واقعہ پیش آیا ہے جو ریپ کیس کا اتنا افسوسناک اور دردناک واقعہ ہے کہ بولتے ہوئے بھی ہمیں شرم محسوس ہو رہی کہ ہم اتنے مسلم قائدین رہنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکا. آج تک بھی کوئی آئے نہیں قریب نام نہاد پارٹی کے لوگ بھی. والدہ کی بچی کے والدہ کا یہ حال ہے کہ 2 کڈنیاں بھی فیل ہو چکے ہیں کہ اب تب پہ ہے, ڈاکٹر بول دیا کہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اس سے دردناک واقعہ وہ والدہ کے سامنے جو بچی کا ریپ ہوا جو کیا اس کو کیفے کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اس کو پھانسی کی سزا نہیں, اس کو چورستے پہ لا کے انکاؤنٹر کرنا ضروری ہے. اس کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے. میں ایم ایل اے شکیل عامر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو چورستے پہ لا کر اس کا انکاؤنٹر کرنا چاہیے اور قانونی کارروائی کر کے جتنا ہو سکتا ہے ان کو ایکسگریشیا پہنچانا چاہیے کیونکہ معصوم کی والدہ کا بھی حالت اتنی بری ہے کہ ہم کو دیکھنے کے بعد افسوس کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے ہمارے. ایم بی ٹی اس کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایکسگریشیا ہونا ضروری ہے اور اس کے اوپر کفے کردار تک اس کو انکاؤنٹر, اس کی پھانسی کی سزا نہیں, اس کو انکاؤنٹر چورستے پہ لا کے ایک ابرناک موقع دینا چاہیے کیونکہ آئندہ کوئی اس طریقے کی حرکت کر نہ سکے. سوچے اس طریقے کی حرکت کرنے کے لیے. میں شکیل عامر سے التجا ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, وہ بھی تمہاری بہن ہے, تمہاری بیٹی ہے, تمہارے بیٹی کے برابر ہے وہ. جب آپ اس کو 6,000 کا ماہانہ اس کو امداد کرتے تو اس کو پوری طریقے سے اس کی امداد کیجیے. یہ نہیں ہو سکتا تو ہم پورے مسلم بھائی ہم جتنے کمیونٹی مل کے بچی کی شادی کریں گے. ہماری ذمہ داری ہے اور میں ایک بھائی ہونے کے ناطے ایک بیٹی ہونے کے ناطے میں اس پہ ذمہ داری میں لیتا ہوں اس کی شادی کرنے کی. مگر اس کمینے ذلیل انسان کا مرڈر نہیں, اس کو پھانسی کی سزا نہیں, اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے چورستے پہ لا کے بودھن. میں اتنا کہتے ہوئے یہ اپنا یہ ختم کرتا ہوں اور میں اس معاملے کو ہمارے امجد اللہ خان صاحب تک لے کے جاؤں گا اور اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو بچی کو مدد کراؤں گا انشاءاللہ اور جتنا ہو سکتا ہے اس کو قانونی جو بھی آپ کو مدد پہنچتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی میں اس کو دلانے کی کوشش کروں گا. ہمارے یار زندہ صحبت باقی. اللہ حافظ.
سابق وزیر محمد علی شبیر کو حج کے اوقات محکمہ پولیس کی جانب سے حراست میں لینا اور عازمین حج کی تقریب سے جانے سے روکنا یہ ثابت کرتا ہے کہ BRS حکومت محمد علی شبیر کی شخصیت سے خوفزدہ ہے۔ سابق وقف بورڈ صدر ضلع پرچار کمیٹی محمد جاوید اکرم کا صحافتی بیان۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ہر دل عزیز قائد مسلمانوں کے رہنما محمد علی شبیر صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے۔ یہ BRS پارٹی کے سربراہ چیف منسٹر صاحب کی بہت بڑی غداری ہے۔ محمد علی شبیر صاحب نے پولیس سے یہ کہا، پولیس ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا کہ دیکھیے مجھے حج جانا ہے، ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے حاجیوں کا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے۔ آج حاجیوں کا قافلہ آخری قافلہ ہے۔ میں جب سے سیاست میں ہوں حاجیوں کے قافلے کے پاس جا کر تمام حاجیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہندوستان کی سلامتی کے لیے، آندھرا پردیش کی سلامتی کے لیے، تلنگانہ کی عوام کی سلامتی کے لیے اور ہمارے کاماریڈی ضلع اور نظام آباد ضلع کی اور تمام ضلعوں کی وہاں کی قوم، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کی سلامتی کے لیے حاجیوں سے ادباً ہمارے محمد علی شبیر صاحب گزارش کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر آپ لوگ یہاں سے جو حاجی جا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجئے، ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے۔ یہاں پر ہو رہے تمام پریشانیاں، یہاں پر ہو رہے مہنگائی کے بوجھ کے واسطے، یہاں پر ہو رہے ظلم کے واسطے آپ لوگ دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اے حاجیوں، آپ ہمارے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی تمام قوم کو مل جل کر رہنے کے لیے دعا کیجئے۔ اے حاجیوں، آپ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم اور ہندوستان کے ہندو بھائیوں پر ہو رہے ظلم کے بارے میں آپ حج میں دعا کیجئے۔ یہ محمد علی شبیر یہ الفاظ وہاں پر کہتے ہیں۔ حاجیوں سے وہاں پر ادباً گزارش تمام ہندوستان اور ریاست تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی سلامتی کے لیے حاجیوں سے گزارش کرنے کے لیے ہمارے محمد علی شبیر حاجیوں کے قافلے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر BRS اور وہاں کے کچھ فرقہ پرست جو ذہن رکھنے والے ہندو مسلم کو الگ کرنے والی سیاسی جماعت کے قائدین محمد علی شبیر کو وہاں پر آنے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ محمد علی شبیر ہے سارے ہندوستان میں، آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو 4% تک وزاد دلانے میں محمد علی شبیر صاحب کا اہم رول رہا۔ تلنگانہ کے کئی مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غریبی سطح سے نیچے تھے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل ان کو دلانے میں محمد علی شبیر اور کانگریس پارٹی کا رول رہا۔ محمد علی شبیر صاحب نے آندھرا پردیش کے غریب مسلمان نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے 4% تحفظات کے ذریعے فیس ریمبرسمنٹس، اسکالرشپس اور کالجوں میں بڑے بڑے MBA MCA یا MBBS انجینئرنگ کالجوں میں ایڈمیشن دلانے والا واحد شخص ایک ہے تو وہ ہے بادشاہ محمد علی شبیر۔ محمد علی شبیر کی مقبولیت سے بوکلاٹ کا شکار ہو کر چندر شیکھر راؤ اور تمہاری الائنس جماعت نے آج محمد علی شبیر کو حج قافلے سے جانے سے روکا، حاجیوں سے ملاقات کرنے سے روکا۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آنے والے دنوں میں مسلمان آپ کو ایسی دھول چٹائیں گے، BRS پارٹیاں اور الائنس جماعت سے کو ایسی دھول چٹائیں گے کہ دکھیں گے نہیں آپ تلنگانہ میں اور آندھرا پردیش اور ہندوستان میں نہیں دکھیں گے۔ محمد علی شبیر کو آج روک کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں آج پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کسی کی کٹ پتلی مت بنیے۔ محمد علی شبیر وہاں پر جا کر حاجیوں سے تلنگانہ کی سلامتی کے لیے دعا کی اپیل کرنے والے تھے۔ محمد علی شبیر حاجیوں کے پاس جا کے ہندوستان کی سلامتی کی دعا کروانے والے تھے۔ حاجی محمد علی شبیر وہاں نہیں گئے تو حاجیوں محمد علی شبیر کو روکا گیا۔ میرے حاجی بھائیوں، محمد علی شبیر صاحب کو روکا گیا۔ وہ محمد علی شبیر جو شہنشاہ ہے مسلمانوں کے واسطے لڑنے والے، وہ محمد علی شبیر ہر قوم میں مقبول ہے۔ محمد علی شبیر ہمیشہ کانگریس پارٹی کانگریس حکومت میں رہ کے ہر وہ قوم کی ترقی چاہتے، غریبوں کی غریبی ہٹانے والا واحد اگر کوئی لیڈر ہے مسلمانوں کا مسیحا ہے تو محمد علی شبیر ہے۔ آج ان کو روک کر BRS پارٹی بہت غلطی کی ہے۔ میں KCR صاحب سے، چیف منسٹر آف تلنگانہ سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ محمد علی شبیر سے آپ معافی مانگے، کیونکہ حاجیوں کا قافلہ ہمیشہ محمد علی شبیر حاجیوں کے قافلے کو جاتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ غور کیجئے، جتنے بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
जहाँ तक भी मेरी वे वीडियो जा रही है, BRS पार्टी का फ़िरका परस्ती जहन आज मालूम हो चुका है। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद, आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की विदाई तक़रीब में शिरकत से महरूम करने का चीफ मिनिस्टर पर लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना कांग्रेस सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स की पुलिस ने इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने चंद्रशेखर राव की हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने इन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़े इनकी क़याम का पहुँचकर इन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिससे इन्हें काफ़ी हैरत हुई है, जिससे वो हज हाउस जाने और आज़मीन के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी महकमों में तालमेल का ये फौदान तशवीश का बायस है। घर पर नज़रबंद करने पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर हज कैंप को सियासी रंग देने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन का हमेशा से ये रिवाज रहा है कि वो हज्जाज के मुख्तलिफ काफ़िलों की विदाई तकरीब में शिरकत करते हैं। इसी सियासी एजेंडे से हटकर एक मुक़द्दस अमल के तौर पर देखते रहने का कांग्रेस कायदीन ने कहा कि ना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद आज़मीन हज को विदाई करने जाते हैं और ना दूसरों को विदाई करने का मौका फराहम करते हैं। चीफ मिनिस्टर ने 2017 से हज हाउस का दौरा नहीं किया है और अब वो दूसरों को आज़मीन के साथ राब्ता कायम करने और इन्हें इनके मुक़द्दस सफ़र पर रस्मी रुख़सती देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के कई अजला में अगले 5 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश, बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों में मानसून की रियासत के कई इलाकों तक फैल जाने की पेशकश की है। बताया गया है कि अगले 5 दिनों में रियासत के कई मुकामात पर बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुम्मा की सुबह तक मलक, भूदाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट और यादाद्री भुवनेश्वर अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जुम्मा से हफ्ते तक भोपालपल्ली, मलवक, भूदाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट अजला में मूसलाधार बारिश होगी और आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, संगारेड्डी, मेदक में हफ्ते तक मूसलाधार बारिश होगी, जिसके पेश नज़र येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 25 से 26 तारीख तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल और जगत्याल अजला में बहुत ज़्यादा बारिश के इम्कान थे और काम की जानिब से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत म्यूनसिपल में खुसूसी तौर पर इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में शहदा को भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अपनाई गई। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कमिश्नर चित्रा मिश्रा, कॉर्पोरेटर्स, म्यूनसिपल अहदेदारान ने शिरकत की। సభకు నమస్కారం। నేటి కౌన్సిల్ ప్రత్యేక సర్వసభ్య సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ కార్పొరేటర్లకి, గౌరవ కోఆప్షన్ మెంబర్స్కి, గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, అలాగే మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారికి, एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर में यौम शहदा प्रोग्राम को शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया। एड़पल्ली मंडल परिषद दफ्तर में यौम शहदा के पेश नज़र इनेकाद अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम से अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाए जाने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में कामयाबी के साथ रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व जारी तरक्याती कामों की वजह से मंडल से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत में तरक्की मुमकिन हुई है और इस वक्त तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में नाफिज करदा पले प्रगति, पटना प्रगति, मिशन भगीरथा, हरितहरम, दलित बंधु, पीसी बंधु जैसी मुनफरिद स्कीमात अवाम तक पहुँचाई हैं और इसी तरह से रियासत तेलंगाना में किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए मुतारफ़ करदा राइत बंधु स्कीम मुल्क में शोहरत हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे रियासत तेलंगाना के अवाम इस वक्त के हुक्मरानों से बज़दन हो गए थे। जैसे ही तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर फायद होने के फौरी बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मंडल से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुल मंजूरी अमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने की वजह से अवाम TRS हुकूमत के शहदाई होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPDO गोपाला कृष्णा, MPO सुभाष चंद्र बोस, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान, MPTCs, पंचायत सेक्रेटरी के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఉద్యోగస్తులని
ముఖ్యంగా విద్యార్థులని మహిళలని అందరినీ ఏకతాటి మీద నిల్చోబెట్టి మలి విడత ఉద్యమాన్ని ఏకచక్రాధిపతిగా ఆయననే ముందుండి నడిపించి ఈరోజు बोधन म्यूनसिपल की ज़ेर निगरानी में तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत इनेकात अमल में लाए जाने वाले यौम शोहदा के मौके पर तेलंगाना तहरीक शोहदा को खिराज क़िदत पेश की गई। रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत आज बोधन म्यूनसिपल के ज़ेर निगरानी में अम्बेडकर एक्स रोड पर वाक़ शोहदा के मुजस्समे के पास तेलंगाना तहरीक शोहदा को शानदार पैमाने पर खिराज क़िदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से खिराज क़िदत पेश की। इस प्रोग्राम में बोधन आरडीओ श्री राजेश्वर, तहसीलदार वरा प्रसाद, म्यूनसिपल कमिश्नर खमर अहमद, म्यूनसिपल डीई शिवानंद, एई श्रीनिवास, शिवा कृष्णा, मुलाजिमीन, मेफमा महिला संगम से वाबस्ता राकिन व दिगर ने शिरकत की। ఇటువంటి ఘోరాతిఘోరమైన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇది కేసు అతి తొందరగా ట్రై చేసి నిందితుడిని శిక్షించడానికి నిందితుడి కేసు తేల్చడానికి స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో సందర్భంగా మేము మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మా ఎమ్మెల్యే గారి తరఫున ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ కేసులో నిందితులకు ట్రై చేయడానికి కేసుకు ట్రయల్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ కోర్టు ఖాయం చేసి తొందరగా వారికి శిక్షించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి మేము పత్రికా ముఖంగా మా ఎమ్మెల్యే గారిని సవినయంగా కోరుతా ఉన్నాం. बालकोट मंडल के ईसानगर ग्राम पंचायत दफ्तर में रियासत तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत यौम शोहदा प्रोग्राम का इनेकात अमल में लाया गया। रियासत तेलंगाना की 10 साला तकारीब के तहत आज इनेकात अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम आखिरी होने के बाद बालकोट मंडल के मुकाम पर वाक़े किसानगर ग्राम पंचायत दफ्तर में यौम शोहदा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया गया, जिसमें इस प्रोग्राम में शिरकत करने वालों ने शोहदा की तस्वीर को फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज क़िदत पेश की। इस प्रोग्राम में सरपंच तुलसी, नायब सरपंच श्रीनिवास गौड़, साबिक़ एमपीपी नागाभूषणम व खुसूसी अहदेदार वेंकटेश्वरलू और मुख्तलिफ वार्ड मेंबरान मौज़ी के अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। गरीब अवाम के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना ही सीएम केसीआर का बुनियादी मकसद होने का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गृह लक्ष्मी स्कीम से मुताल्लिक़ा गाइडलाइंस का जियो जारी करने के बाद रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी सीएम केसीआर को इज़हार तशक्कुर पेश कर कहा कि गृह लक्ष्मी स्कीम केसीआर हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए एक नेमत है। इस स्कीम के तहत ज़ाती ज़मीन रखते हुए मकान की तामीर के लिए अहल मुस्तहिक़ीन के लिए 3 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी और हर असम्बली हल्के में वाक़ 3000 मकानात के तहत कुल 4 लाख मकानात की तामीर के लिए 7350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कुल 4 लाख अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। माजूरीन को पेंशन देने वाली रियासत में रियासत तेलंगाना अव्वलिन मुकाम पर होने का टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। इंदलवी मंडल के मुकाम पर यौम तासीस तेलंगाना दहाई तकारीब के तहत इनेकात अमल में लाए गए यौम रूहानियत प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 20 यौम से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे रियासत तेलंगाना अशरा तकारीब के तहत हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाले तरक्याती काम व जारी स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से अवाम को शौरबेदारी अमल में लाते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल से आगाही हासिल करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। बातज़ा रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने माजूरीन को 50% रियायत के साथ फराहम किए जाने वाले आरटीसी बस पास की तकसीम अमल में लाई गई। रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि माजूरीन को वजीफ़ा देने वाली रियासतों में रियासत तेलंगाना को अव्वलिन मुकाम हासिल हुआ है और हाल ही में माजूरीन को दिए जाने वाले पेंशन में 1000 रुपये का इजाफा करते हुए 4016 रुपये की फराहमी अमल में लाई जा रही हैं, जो कि काफ़ी खुश आइन बात है। सीएम केसीआर के दौर इक़्तिदार में माजूरीन को 4016 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है, तो तमिलनाडु में 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है और आंध्र प्रदेश में 3000 रुपये, उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये, उड़ीसा में 200 रुपये, छत्तीसगढ़ में 200 रुपये, महाराष्ट्र में 300 रुपये, बिहार में 400 रुपये, झारखंड में 700 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी रियासत तेलंगाना में माजूरीन को 4016 रुपये देने वाली रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे।
తర్వాత మళ్ళీ సర్టిఫికేట్ అన్ని ఐడి కార్డు ఇష్యూ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మీద ప్రేమతోటి, మీ మీద గౌరవంతో మరొక 1000 రూపాయలు పెంచిండి ఆయన మీకు మన పెన్షన్. ఒకటి దయచేసి నా మరొకటి, మీరు ఆయన్ని దీవించాలి. అలాంటి వ్యక్తి మనకు ఉండాలి, అలాంటి నాయకులు మన రాష్ట్రంలో మనల్ని పరిపాలించాలి. ఆ వ్యక్తి ప్రతి వర్గాన్ని, ప్రతి కులాన్ని, ప్రతి వ్యక్తిని గౌరవించే వ్యక్తి. ఇతరులు అట్లా లేదు. ఇతరులు ఏమంటున్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మీకు? ఫ్రీ ఏది ఇవ్వదు వాళ్ళ, ఫ్రీ ఎవరికి ఇవ్వద్దు. ఫ్రీ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే దొంగలకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళకు లక్షల కోట్లు అప్పు తీసుకుని ఎవరితో చూడు. बालकुंडा में शानदार पैमाने पर शहदा की याद में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावखार अंदाज से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले दाही तकारीब के तहत बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर में यौम तासीस तेलंगाना अशर तकारीब अख्तिताम अमल में लाए जाने के बाद यौम शहदा प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सरपंच भूसा सुनीता नरहरी, नायब सरपंच शेख वहाब, पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी, वार्ड मेंबरान कायदीन ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने शहदा की जानिब से फराहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अपनाते हुए भरपूर तरीके से खराज खदमत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जो 2 जून 2014 को मुल्क की 29वीं रियासत की हैसियत से वजूद में आई थी, अपने क़याम के 9 बरस मुकम्मल करके 10वें बरस में कदम रखे जाने की वजह से रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 जून से 22 जून तक यौम तासीस तेलंगाना अशर तकारीब को कामयाबी के साथ रूब अमल में लाकर रियासत तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुनक़िद किए गए तरक्याती फलाही प्रोग्रामों, मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों को हासिल होने वाले फ़वाइद और हासिल करदा पेशरफ़्त कामों के ताल्लुक़ से रियासती अवाम को वाकिफ़ करवाया गया। और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के ज़ेर निगरानी में बालकुंडा मंडल के मुकाम पर 143 करोड़ के मसारिफ से कई तरक्याती फलाही प्रोग्रामों का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान पुप्पाला, लावण्या, विद्यासागर, जी राजेश, सईद रियाज अली, रंजित यादव, पी शिवा प्रसाद, अख्तरी बेगम, रामन शिवा कुमार, साबिक़ा MPTC मेंबर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर, IKP, CS, FA सुरेश, आंगनवाड़ी टीचर्स, मौजे के मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। शहर के विनायक नगर में वाक़ तेलंगाना शहदा के मुजस्सिमे पर ZP चेयरमैन डी विठल राव ने पेश की खराज अक़ीदत। रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत यौम शहदा प्रोग्राम के पेश नज़र ZP चेयरमैन विठल राव ने शहर के विनायक नगर में वाक़ शहदा के मुजस्सिमे पर भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इनके साथ ZPTC कॉर्पोरेशन मेंबर CEO ZP गोविंद, डिप्टी CEO सौंदरा वर्दा राजन, पंचायत राज मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान प्रभाकर, राजेंद्र कुमार, नरेश, ZP के मुलाजमीन ने शिरकत की। और इसी तरह से IDOC में मुनक़िद किए गए शहदा के अफ़राद ख़ानदान को तहनीत अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता, निज़ामाबाद मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPTC TNGO जिले सदर अलोका किशन, कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। ధన్యవాదాలు జవాలు తెలియజేస్తూ కనీసం 1200 మంది స్టేట్ లెవెల్లో అయినరు. మన జిల్లాలో 32 మంది అమరులైనరు. దాంట్లో 30 మందికి కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. ఇతరత్ర కూడా ఆర్థికంగా కూడా లాభం చేసిండ్రు. కొందరికి పొలిటికల్గా కూడా లాభం చేసిండ్రు. శ్రీకాంత్ చారి కుటుంబానికి కూడా భవిష్యత్తులో కూడా అతి త్వరలో సీఎం గారు ఏదో ఒకటి నిర్ణయం తీసుకుంటారని। रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाकर 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मसाइल हल न होने का PCC कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया। PCC सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान के ज़ेर निगरानी में रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के अलावा एक दाही तकारीब के खिलाफ एहतजाज करने के तहत 10 सरों वाला रवाना सूरा की शक्ल में KCR का लामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर PCC जनरल सेक्रेटरी फ़खरुद्दीन ने शिरकत की। इस मौके पर PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने से अवाम की ज़िंदगी व बेरोज़गार नौजवानों की ज़िंदगी में बेहतरी व खुशहाली लाने के लिए सोनिया गांधी की जानिब से रियासत तेलंगाना दिया गया
لیکن تلنگانہ کا قیام عمل میں لا کر 10 سال گزر چکے ہیں. اب تک ٹیآرایس پارٹی انتخابات میں دیے گئے وعدوں کو برآمدات کی نظر کرتے ہوئے انتخابات میں عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ نہ پہناتے ہوئے داہی تقارب کے نام پر عوام کی رقومات کو ضائع کرتے ہوئے ٹیآرایس پارٹی تشہیری مہم کرنے کا اظہار کیا. اس موقع پر پی سی سی جنرل سیکرٹری فخر الدین نے کہا کہ ٹیآرایس حکومت عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے تلنگانہ میں آمرانہ طرز کی حکومت کر رہی ہے. صرف انتخابات کے موقع جھوٹے وعدے کرتے ہوئے اقتدار حاصل کرنے کا اظہار کیا. اس پروگرام میں ضلع کسان کانگریس صدر مپا گنگا ریڈی، ضلع نائب صدر کانگریس انتی ریڈی راجا ریڈی، ضلع NSUI صدر وینو راج، ضلع OBC صدر نریندر گوٹ، ریاستی مہیلا کانگریس جنرل سیکرٹری چندر کلا پی اوشا و دیگر نے شرکت کی. రాష్ట్రంలోని 119 నియోజకవర్గాల్లో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు అమలు చేయలేదనేటువంటి ఉద్దేశంతో దశాబ్ది దగా పేరు మీద నిర్వహించడం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ KG2 PG విద్య కానీ మళ్ళీ 2 బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ 3 ఎకరాల భూమి కానీ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కానీ BC బంధు కానీ ఇలాంటి అన్ని విషయాల్లో విఫలం చెందిన కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించేందుకు पठान चिरो के कोल्लूर में डबल बेडरूम मकानात का CM KCR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत. कोल्लूर में डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रस्म रिवाज के मुताबिक मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए CM KCR के अहकामात के मुताबिक मुस्तहिक़ीन ख़वातीन को डबल बेडरूम मकानात हवाले किए. अदम तशद्दुद का एक और मरहला. तेलंगाना तहरीक क़ायद KCR ने पुरअमन अंदाज में जद्दोजहद करते हुए रियासत तेलंगाना को हासिल करने का गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने किया इजहार. ज़िले कामारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेकाद अमल में लाए गए ZP इजलास में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने कहा कि शहदा के अज़ाइम के उसूल के लिए रियासत वज़ीर आला KCR ने कोशिश करे और शहदा की कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई गई. इसीलिए हर एक फर्द शहदा की कुर्बानियों को याद रखे. रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाने के बाद तरक्की व फलाह बहबूद के शोबे में मुल्क में तेलंगाना को अव्वलिन मुकाम हासिल हुआ है. 2014 2 जून से क़ब्ल रियासत में होने वाली तरक्की और रियासत की तश्कील अमल में लाकर 9 साल मुकम्मल करते हुए 10वें साल में कदम रखने के पेश नज़र रियासत में शुरू किए गए तरक्याती कामों व फलाही प्रोग्रामों के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाने के मकसद के तहत CM KCR ने रियासत तेलंगाना दाही तकारीब का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया. इस इजलास में ZP वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार, जिले के एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, ट्रेनी कलेक्टर शिवांद्र प्रताप, ZP CEO सायागौड, ZPTC मेंबरान, MPTC व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद. तेलंगाना के शहदा को इज्जत व एहतराम देने वाली रियासत तेलंगाना होने का MLC के कविता ने इजहार किया. शहर हैदराबाद के एबेट्स में वाक़ तेलंगाना सरासती परिषद में भारत जागृति के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए तेलंगाना साहित्य सभा में शिरकत करने वाले MLC के कविता ने कहा कि तेलंगाना की तारीख तो आज सुनहरे हरफों में तहरीर की जा रही है और टैंक बॉन्ड के पास क़याम अमल में लाए गए शहदा के मुजस्समे के अनक़रीब नकाब कुशाई अमल में लाई जाएगी. इसी तरह से आज कुछ अखबार वाले यूनियन स्टेट में अपनाए गए पॉलिसियों पर अमल करने पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि हमारी रियासत अजीम रियासत लिहाजा हर मामले को सियासत न जोड़ने की ख्वाहिश की. ప్రజా ఉద్యమాలలో లక్ష్యాన్ని ముద్దాడినటువంటి మొదటి ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమం. ఈ రాష్ట్ర సాధన కోసం అనేక మంది కృషి చేసినారు, అనేక మంది తమ ప్రాణాలు బలిపెట్టినారు. దానివల్లనే ఇవాళ రాష్ట్రం సాధించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇంత పోరాటం తర్వాత ఇన్ని త్యాగాలతోని ఇంతమంది సంయుక్తంగా చేసినటువంటి కృషితో వచ్చిన రాష్ట్రం కాబట్టి అంతే ఎత్తున చరిత్ర సృష్టించి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. మనందరం కూడా గత 10 ఏళ్లలో మన రాష్ట్రంలో సాధించినటువంటి ప్రగతి. बांसवाड़ा में वाक़ तेलंगाना शहदा के मुजस्समे पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने पेश की खिराज अक़ीदत. रियासत तेलंगाना दाही तकारीब के तहत तेलंगाना शहदा की यादगार में मुनक़दा प्रोग्राम के पेश नज़र बांसवाड़ा शहर के अहाते में वाक़ कोयागुट्टा के पास वाक़ शहदा के मुजस्समे पर रियासत के असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की. इस मौके पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि
शहादा की कुर्बानियों के नतीजे में क़याम अमल में लाए गए तेलंगाना की हिफाजत करना हर एक शहरी का बुनियादी फर्ज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB चेयरमैन पोचुराम भास्कर रेड्डी, जिले रायतु बंधु सदर DNJ रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, अवामी नुमाइंदे, कायदीन व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। అమరవీరుల స్తూపం ఇంత ఎత్తున ఎక్కడ ప్రపంచంలో లేదు, దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో లేదు. దానికి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఎవరైనా హైదరాబాద్కు బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ముఖ్య నాయకులు విఐపీలు వస్తే ఎట్లయితే ఢిల్లీకి పోతే మహాత్మా గాంధీ గారి ఘాటును సందర్శిస్తారు. అది అనువాయితీ చేసింది. అక్కడ విదేశాలకు ఎవరైనా వచ్చినా ఫస్ట్ ఆడిపోతారంటే మహాత్మా గాంధీ గారి ఘాట్ దగ్గరికి. అదేవిధంగా హైదరాబాద్కి ఎవరు వచ్చినా ముందు అమరవీరుల స్తూపానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాతనే వేరే దిక్కు తీసుకెళ్లాలని ఒక ఆర్డర్ చేయబోతున్నారు. అన్యాయం జరిగింది. मोरतार मंडल के मराकज़ के अलावा मंडल के मुख्तलिफ देहात में आज यौम शहादा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। मोरतार मंडल के मुकाम पर MPP शिवालिंगो श्रीनिवास, BRS पार्टी मंडल सदर एलैया, जुम्मेदार अहदेदारान, अवामी नुमाइंदों के हमरा आज तेलंगाना यौम तासीस तकारीब के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले यौम शहादा प्रोग्राम के पेश नज़र मंडल के मुकाम पर वाक़ शहादा के मुजस्समे पर भरपूर खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना तमाम शोबे जात में अव्वलीन मुकाम हासिल करने का इजहार किया। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर तमाम शहादा प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। भीमगढ़ मंडल के मुकाम पर तेलंगाना दाही तकारीब अख्तिताम प्रोग्राम के तहत इनेकाद अमल में लाए जाने वाले यौम शहादा में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के हमरा MPP आर्मर महश ने शिरकत की। बातज़ा शहादा की कुर्बानियों की याद में 2 मिनट की खामोशी अपनाई गई। इस मौके पर MPP आर्मर महश ने कहा कि तेलंगाना में मरहले वार की गई जद्दोजहद के तहत तेलंगाना में शहादा की कुर्बानियों के नतीजे में रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाया गया और हमारी रियासत तेलंगाना में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी में पानी, फंड्स और तक़र्रुरात के ख्वाब को हक़ीक़त में तब्दील करते हुए दाही तकारीब के तहत मुल्क में अव्वलीन मुकाम रियासत तेलंगाना हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPTC चोटपल्ली रवि, MPDO राजेश्वर, तहसीलदार श्रीधर शर्मा नायक, रायतु सामान्य समिति बाबापुर, MPTC व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का आज रियासती वज़ीर आला KCR ने किया इफ्तिताह। 15,000 से ज्यादा गुरबा को हुकूमत की जानिब से फ्राहम किया जाएगा डबल बेडरूम। तकरीब में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। तेलंगाना शहादा की कुर्बानियों के सबब रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा में मुनक़दा तकरीब से खिताब। बोधन अस्मत रेजी में मुलव्विस दरिंदों का इनकाउंटर करने का मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी जमातों के जिम्मेदारों ने बोधन का दौरा करते हुए हुकूमत से किया मुतालबा। वो बोधन में मिले शकील आमिर की जानिब से फौरन मौके पर पहुंचते हुए की गई कार्रवाई पर की सताइश। तेलंगाना शहादा की इज्जत व एहतराम करना हमारी तहजीब। तेलंगाना सरस्वती परिषद की जानिब से मुनक़दा तकरीब से मुत्तहदा जिला MLC के कविता का खिताब। तेलंगाना शहादा की कुर्बानी नाकाबिले फरामोश। विनायक नगर में शहादा मुजस्समे को MLA बिगाला गणेश गुप्ता व जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पेश की खराज। पूरे मुल्क में माजूरीन को पेंशन की फराहमी में तेलंगाना नंबर 1। निजामाबाद के 5,000 नाबीना माजूरीन को शनाख्ती कार्ड के अखराजात फराहम करने का रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।